नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग में। सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही, बोले आनंद शर्मा। Foreign policy of a country, and in case of India historically, is meant to promote India's national interest, to serve India's national interests, and also take our worldview to our strategic partner countries, to mobilize support in favor of what we feel is right and what would serve the larger cause of peace and humanity. Foreign policy, as it has evolved since independence, always had the backing of a broad-based national consensus. It has never been held captive or hostage to partisan politics. Unfortunately, that national consensus has been weakened in recent years, if not completely broken down, which it has on many of the positions that the government has arbitrarily chosen to take, departing from India's traditional positions without consulting either the parliament or informing. The government of the day has a mandate to take decisions, but when it comes to foreign policy, it involves everyone, and that's why the consensus is important. India commanded an authority and respect in the world, not that we were a major economic power or a military power. We had the moral authority. We were acknowledged as a voice of humanity. And that's why wherever the crisis came in the world, those countries affected looked up to India. Unfortunately, that's no more the case. It is up to the government that how it retrieves this position, India's standing, and rebuilds national consensus. Looking at the situation as it is, it's time for recalibration, honest introspection, and course correction in our foreign policy approach. Equally important and integral to this is the neighborhood policy. We were, and rightly so, acknowledged as the preeminent power of South Asia. Nobody can say that today. It's for us to rethink our strategy, to engage in a manner that despite the challenges and complexities of the neighborhood, India regains its strength and standing in its own region. Our advice to government will also be that while engaging with the neighborhood, we have to be cautious. A foreign policy is meant to engage with other sovereign countries. It must not be linked for the furtherance of any domestic partisan political agendas. That would be not only a mistake, but a blunder, which should be avoided at any cost. Our purpose is not just to criticize or point scoring. No. It is to caution,
to share our concerns which are placed before you. एक ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि भारत की विदेश नीति जिस तरह से उसमें बिखराव है इस समय, भारत का प्रभाव विश्व में कम हो रहा है। ये सबके लिए दुख की बात है। इस भारत देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जहाँ दुनिया के देश जो प्रगतिशील देश हैं, जिन महाद्वीपों में बड़े संघर्ष हुए आज़ादी के लिए, रंगभेद के खिलाफ, उन्होंने भारत की अगुवाई को माना, भारत की आवाज़ को सुना। चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, एशिया के मुल्क हैं। और इसका ये कोई कारण नहीं था, जैसे मैंने बताया, कि हम कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति थे। नहीं, 50 के दशक में जब कोरिया का क्राइसिस हुआ था, भारत की तरफ दुनिया ने देखा था समाधान के लिए। आज अलग बात है कि ये एक नई रिवायत बनी है कि उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता जिनको विश्व सम्मान करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आलोचना होती रहे। पर यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि हर चुनौती के समय जो विश्व के सामने आया, एक देश जो लंबे अरसे की पराधीनता के बाद, गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, उस देश भारतवर्ष की आवाज़ दुनिया सुनती थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति हमारी नैतिकता की थी और मानवता की आवाज़ की थी। आज वो दोनों कम हुई हैं। विदेश नीति के लिए ये भी आवश्यक है, जब हम अपने राष्ट्रहित को आगे लेकर चलते हैं, उसके पीछे एक आम सहमति देश की रहती है। जैसा मैंने बताया, पूरे देश का कंसेंसस साथ चलता था। वर्तमान सरकार ने उसको कमज़ोर किया है। एक तरफी फैसले लेके जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति से संबंधित है, उस पर विराम लगना ज़रूरी है राष्ट्रहित में। सरकार को देखना है कि किस तरह से वो इस पे विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें, वास्तविकता को स्वीकार करें, और जो देश के बड़े दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठकर भी विचार विमर्श करें। इसलिए हम ये भी आवश्यक समझते हैं कि आने वाले संसद के सत्र के अंदर विदेश नीति पर और जो समस्याएं या चुनौतियां जुड़ी हैं आज, वो भारत के लिए भी हैं, विश्व के लिए भी, उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हो। There is need for a debate. There is need for a discussion. A comprehensive one. The time has come on India's strategic engagements and India's foreign policy without any further delay. No country in a democracy avoids and evades a discussion on its foreign policy. You would not see it in the parliaments of any major country where there is a honest, frank discussion. More damage is done by being non-transparent or opaque and not communicating with your own country first in a correct manner, so that we retain the strength of our voice in the global affairs. Today, the multilateralism or the multilateral world order of governance is under siege.
जो बहुराष्ट्रीय प्रणाली है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी, आज वो चरमरा रही है। जो भी फैसले हुए, समझौते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमज़ोर हो रहा है, उनके निर्णयों पर अमल नहीं होता। अगर कोई निर्णय होता है उसकी खुली मुखालफत होती है। So this is a serious issue before the world. If a rule-based multilateral order of governance collapses, where does India position itself along with its strategic partner countries? This is a fundamental challenge today before us. It cannot be wished away. You all are aware what's happening in the world. So unless and until we, along with our partner countries, have a strong voice, we will not be able to influence, let alone determine, the future course in the world that we live in. See, a country which has taken the right positions, which I referred to, for which we have been respected, for us to be a mute witness, to be silent on what is happening in Gaza, is unacceptable. It has shocked our traditional partner countries, those who looked up to India, that India will speak. India had taken a position, so had the Indian National Congress in October 2023 when there were attacks by Hamas. But after that, what's happening is a collective punishment to innocent Palestinian people, especially old, elderly, men and children. Tens of thousands, as per the UN agencies, almost 500,000 people, mostly children and women, are facing starvation. It is mass killing, brutal killings, a genocide. It's a human catastrophe. 58,000 or more. Every day the number changes. When people go, starving people, to collect the food, live ammunition is used and people die. It's not just a number. It concerns an entire people and a region. The number of injured, maimed people would be 4 times more. 81% of the territory there, which is under illegal occupation, by the way, since 1967, is under the Israeli military control. India has relations with both. Why India cannot use its influence and voice to tell Israel to stop? That's the question. Because what is happening is in brazen violation of international law, UN Charter, and the Charter on Human Rights. Last month, on 12th of June, when the UN General Assembly discussed this matter and a resolution was voted upon, and what was the resolution? For ceasefire, for immediate cessation of hostilities and military action, so that much needed humanitarian assistance could reach the trapped people. 149 countries voted for the resolution. The land of Gandhi, who had taken a position on this matter way back around when this Balfour Declaration took place and the First World War was ending,
abstained. India did not vote for peace and for ceasefire. I cannot use the word unfortunate. That is painful, unacceptable. That one action diminished India's credibility as a leader and voice of Global South. Because all the countries of the Global South voted for the resolution, how can the leader not be with them? And not only the countries of Global South, but also major countries of Europe, including 2 P5 countries, UK, France, Germany, they all voted for the resolution. Of our traditional partners in BRICS also, the original founders of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and then South Africa joined. All 4 were with the resolution, voted for the resolution. The countries I named in Europe, they have strong relationship both with Israel as well as with America. But yet they voted for humanity, which we did not. It is a fundamental departure from India's traditional position. And the silence continues. We would urge the government, they should, as we wish to be, to reclaim our moral standing as a voice of the Global South by speaking on this and prevailing upon the strategic and traditional partners to work for bringing earlier peace in Gaza and the region. So मैंने बताया अभी अंग्रेजी में कि भारत ने जो हमारा ऐतिहासिक हमने पोजीशन ली है मानवता के लिए, मानव अधिकारों के लिए, और हमारी आवाज़ को विश्व ने हमेशा सम्मान से सुना। ख़ास तौर पे जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, तमाम राष्ट्र जो पहले प्रगतिशील देश थे, उसमें अधिकांश वही हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व भारत के पास रहता था। अभी जो लंबे अरसे से गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, एक त्रासदी है। अधिकांश लोग जो मर रहे हैं वो निहत्थे नागरिक हैं, मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कहीं भी कोई भी युद्ध में भी निहत्थों पे नहीं इस तरह से निरंतर हमला रहता है। मैंने आंकड़े दिए, आपको भी मालूम है। जब तक ये प्रेस वार्ता ख़त्म होगी, डर ये है कि और भी उसमें आंकड़ों में फेरबदल हो जाएगा। भारत की चुप्पी से कष्ट हुआ है हमारे मित्र राष्ट्रों को। जो 12 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पे चर्चा की और वोट की, 149 देशों ने उसके पक्ष में मत दिया। तमाम उसमें जो राष्ट्र थे, अधिकांश वही देश थे जिनकी भारत से मित्रता भी है और जिनका ग्लोबल साउथ जहाँ जो भारत की तरफ देखते थे। एक समय ऐसा था हमारी कूटनीति में, और जो पुराने लोग हैं उस चीज़ को जानते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस विषय के, कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे विषयों पे वोट पड़ता था तो कई देशों के लोग अपने एम्बेसडर्स को हिदायत दे के रखते थे। उनको कहते थे, पहले अगर आपके पास कोई संदेश ना आए राजधानी से, वहीं देखो हिंदुस्तान भारत देश कहाँ वोट कर रहा है। जहाँ इंडिया वोट करता है, आपको इंडिया के साथ वोट करना।
आज 149 देश एक तरफ वोट कर गए, जिसमें बड़े पश्चिम के राष्ट्र जिनका अच्छे संबंध अमेरिका और इजराइल से भी हैं, क्योंकि किसी को हमारे भी संबंध हैं, वो वोट कर सकते हैं। फ्रांस कर सकता है, इंग्लैंड कर सकता है, यूके, जर्मनी कर सकता है। हमारे साथी देश जो ब्रिक्स में हैं, बड़े देश, क्या रूस नहीं है हमारा साथी देश? ब्राज़ील नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है? हम सबसे अलग थलग कैसे हो गए? और आज ये सवाल करना भी, उस पर भी अगर आपत्ति हो तो बड़ा दुख आता है। भारत को इसमें सुधार करना चाहिए और इन तमाम विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम दोबारा नैतिकता के जहां शिखर पर हम थे, वहां प्रयास हम तभी कर सकते हैं, हमको तभी नेतृत्व मिलेगा, हम तभी आवाज बन पाएंगे ग्लोबल साउथ की। जो हम कहते हैं शब्दों में नहीं होगा, हम करते क्या हैं, हमारा निर्णय क्या है, दुनिया उसकी तरफ देखती है। इसीलिए हमारा सरकार को चेता भी रहे हैं और सरकार को सलाह भी दे रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, कृपा करके इस देश की विदेश नीति को मूलभूत परिवर्तन करके एक लंबे समय के लिए अहित देश का होगा। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा इसी विषयों से संबंधित तो मैं उसका उत्तर। सीएम योगी ने बिरसा मुंडा संगोष्ठी का उद्घाटन किया। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही बिकेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके। कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए
12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव आयोजित। भाई बारिश है, मैं समझ रहा हूं, मगर आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर समग्र राजस्थान के किसान और सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकारिता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विकास को हरदम आगे बढ़ाया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मेरे साथी मंत्री, यहीं के जनप्रतिनिधि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, भाई गौतम दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, श्री आशीष कुमार भूतानी, सचिव सहकारिता श्री सुधांशु पंत जी, मुख्य सचिव राजस्थान, और आज इतनी बारिश में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। अरे हो गया भाई, सुन लिया, तुझे देख भी लिया,
अब थोड़ा शांति रखो। भाइयों बहनों, सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना धाय और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक मेरा राजस्थान है। ये राजस्थान की वीर भूमि। मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और एक सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन। ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है
उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है, वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसके साथ साथ अगर बाजार में दाम ऊपर है तो उसको बाजार में बेचने की भी खुली छूट दी है। मित्रों, आज राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ग्वार का उत्पादन 90% से ज्यादा हमारे राजस्थान में है। 46% सरसों, 44% बाजरा, 22% तिलहन और 15% मिलेट्स के साथ ये सभी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। 18% मूंगफली के साथ दूसरे नंबर है। ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन में ये तीसरे नंबर पर है। और मित्रों, मोदी जी ने 11 साल में गेहूं की एमएसपी में 73% की वृद्धि, चने की एमएसपी में 82%, सरसों में 95% और मूंगफली में 82% वृद्धि करने का काम किया है। आज मैं राजस्थान आया हूं। राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। हमने कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध का औषधीय गुणों के परीक्षण पर रिसर्च शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है।
मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से चौथे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी। और पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दी। और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में एक नंबर पर हो। इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष, सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया, वो सभी सेना के जवान, और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। ऐसी समिति रिपोर्ट पर सरकार की नहीं है भूमिका। देखिए, जस्टिस वर्मा का जो मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सो मोटो अपनी एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी। वो उनकी इन हाउस कमेटी है, सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आई, सरकार के पास आई। अब सांसद जरूर कुछ ये कहते हैं कि भाई ये सांसदों को कुछ ऐसे भ्रष्ट जो आचरण वाला अगर कोई जज है तो वो क्यों रहना चाहिए सिस्टम में। तो सांसद जरूर उद्वेलित है, वो चर्चा भी कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं सांसद, लोकसभा में राज्यसभा के सांसद इस विषय को चर्चा कर रहे हैं। वो एक अलग विषय, चैप्टर है। वो अगर 100 से ज्यादा साइन करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेगा, और राज्यसभा को देंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन साहब कार्रवाई करेंगे। ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया है, वो उनका सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल ही मैटर है, उन्हीं की ही जांच रिपोर्ट थी और उनको ही वो चैलेंज कर रहे होंगे, तो सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। जी। अमेरिका ने TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। दहशतगर्द तंजीम जो है उस पर बैन लगाई है, कितने खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है, और जो ये LAD तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहां पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस LAD तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया, और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। तो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक आवाज उठनी चाहिए कि ये जो दहशतगर्द तंजीम, जितनी भी दहशतगर्द तंजीम है, उनको बैन लगनी चाहिए,
ताकि ये दोबारा किसी महत्व का खून न बहा सके? जी, ये तो सही है कि जो ये दरिंदा ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए और जिनको इन लोगों को बेगुनाह न मारा जाए, जैसे आदल की मौत या और 26 लोगों की मौत इन्होंने घाट पे उतारी। तो इस पे हम खुश हैं कि इन पे पूरी बैन लगनी चाहिए और आइंदा कभी ऐसा मसला ना हो, ऐसा ये हमला ना हो जहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। तो आप अभी कितने खुश हैं? जी, बहुत खुश है। हाँ जी, आपको इंसाफ मिला है? हाँ जी, इंसाफ मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे पूरी पाबंदी लगाई है और इनको नाकामयाब किया है, तो हम बहुत खुश हैं इस पे। अपनी भारत सरकार पे, मोदी जी पे, अपने सरकार पे, इन पे हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने इनका खात्मा किया और इन्होंने इन पे पूरी बैन लगा के इनको ये किया, तो हम खुश हैं इस पे। गांधी परिवार पर झूठे आरोप अब भी जारी, बोले प्रमोद तिवारी। इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, सन 77 पे इंदिरा जी पे ऐसे ही झूठे मुकदमे कायम हुए, राजीव जी पे 1988-89 से शुरुआत हुई और अब जब से हम सत्ता में बाहर हैं तब से राजनीतिक द्वेष, घृणा की राजनीति, झूठ पर आधारित घटिया सतही आरोप लगाए जाते रहे हैं गांधी परिवार पर। उसी श्रृंखला में एक नया चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, इसलिए कि वो इस परिवार के सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। वक्त ने बार बार साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे आरोप इंदिरा जी, राजीव जी और गांधी परिवार पर हमेशा न्यायपालिका के दहलीज को लांघ नहीं पाए और सभी निर्दोष साबित हुए, झूठे निकले आरोप। इसमें भी यही होगा, लेकिन ये घटिया राजनीति और ये विद्वेष की राजनीति में गंदगी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में भारत की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, कौन नहीं जानता, जिनको ऊपर आरोप लगाते रहे उनको लेके आप मंत्री बना रहे हो, और जो लोगों के खिलाफ, जो आपके खिलाफ मजबूती से सच्चाई के साथ खड़े हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उन पे आप झूठे आरोप लगाते हो। आपकी ये घटिया राजनीति की मैं निंदा करता हूं और मैं जानता हूं कि ये लोग इतने निडर और साहसी हैं कि एक बार फिर सच्चाई सामने आएगी। 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता है, सत्यमेव जयते। पीएम मोदी ने 7000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत मोदी 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 मोदी। लद्दाख के साथ अब नहीं होगा भेदभाव, बोले उपराज्यपाल गुप्ता। धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ये लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके
लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगी। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। बाकी कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। सर, लद्दाख के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप एकदम एक्सपीरियंस वाला पॉलिटिशियन, फर्स्ट टाइम लद्दाख के सीट के ऊपर आए। देखिए, हम सबको समझते हैं, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया है, तो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ। अजमेर में भारी बारिश से बाढ़, जनजीवन प्रभावित। यहाँ कहाँ से रहा? यहाँ ही क्या रहने वाले हो गए आप? कहाँ रहते हो? विधान भवन झड़प पर सरकार की छवि धूली, बोले विजय वडेट्टीवार। बदनामी, महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, सत्ताधारियों की बदनामी हो रही है। इस तरह की बातें जब इस पवित्र मंदिर में होती है, जो कानून बनाने का, कानून और व्यवस्था बनाने की जो जहाँ पे ये स्थल है, उसी स्थल पर कानून को हाथ में लेकर इस तरह का, इस हिमाचल में, ये इस एरिया में या विधानसभा के बिल्कुल लॉबी में इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का मारपीट करना, ये निंदनीय है। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, परंतु जिन्होंने मारा वो अकेले आरोपी को अरेस्ट किया, 4 आरोपी को छोड़ दिया। तो उनकी मांग यही थी, उनको इस तरह से गालियां देना किसी आमदार को, और वो पूरा सीसीटीवी फुटेज में आया है। जब वो देशमुख जा रहा था तब वो सीढ़ियों पे किस तरह से इशारा किया जा रहा था वो भी दिख पड़ा वहां पे। मतलब किसके इशारे पर ये हमला हुआ है, वो प्लान के तहत हुआ है, और पढ़ल करके पूरी बॉडी लैंग्वेज, उसके इशारे वहां पे कैद हो चुके हैं, वो भी लोगों ने देखा है सीसीटीवी फुटेज में। अभी माफी मांगने से क्या इज्जत आएगी? आप किसी का खून करोगे और माफी मांगोगे, किसी के साथ में शोषण करोगे और माफी मांगोगे तो माफी हो जाएगी? इस तरह की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? किसके भरोसे हुई? किसके आशीर्वाद? तुमने सत्ता की मस्ती है इसीलिए किया ना, अभी माफी मांग रहे हो। तो अभी महाराष्ट्र की सदन की, ये हमारे महाराष्ट्र की गरिमा है देश में अंदर में, उस गरिमा को दाग लगाने का काम किया गया है। तो उसको माफी नहीं, उसको सस्पेंड करना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, तब इसका पवित्र बचेगा। गोवा को मिली पहली सौर ऊर्जा चालित नौका।
रिपोर्ट के आज मेरे हस्ते उसका शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक, राज्यसभा के सांसद सदानंद तानवडे, एक्स एमपी नरेंद्र सावईकर और श्री लार्सन डिसा और कैप्टन जॉर्सन, इन दोनों के ओन किए हुए इस एलराज ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की सोलार फेरी बोट जो इनॉग्रेट किए, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि गोवा के इनलैंड वाटरवेज में इस तरह की सोलार फेरी बोट का यूज करना बहुत जरूरी है। इन्होंने प्राइवेटली इनिशिएटिव्स लेके शुरू किया, इसलिए इन दोनों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। इन लॉन्ग रन they can use this as a for the tourism purpose, or in long run for the water taxi purpose also they can use whatever the permissions required from the COP tourism. Definitely we can give them the permissions to use this as a in future as a water taxi also. हाँ, डेफिनेटली इस तरह के जो सोलार में जो सोलार पावर बोट, पैसेंजर बोट्स आते हैं, इनके लिए यानी सरकार जो सपोर्ट करना चाहिए वो सरकार। मटन भोजन पर जदयू का जवाब, बोले विकल्प दोनों थे। माननीय ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और सावन महीना में ग्रामीण पथों के शुभारंभ के कार्यक्रम में गए। कार्यकर्ताओं के लिए भोज था, मांसाहारी और शाकाहारी व्यवस्था की गई थी, जिसकी जो मर्जी थी वो खाया। तो माँ कामाख्या का मंदिर है गुवाहाटी में कामरूप में, तो वहाँ तो पट खुलने के पहले बलि होती है और विभिन्न जगहों पर लोग और सनातन धर्म मानने वाले लोग भी प्याज लहसुन खाते हैं। सावन महीना में भी एकदम प्याज लहसुन का चाय भी पीते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में चिंता इसलिए हुआ कि वो नवरात्र की अवधि में और हेलीकॉप्टर में कंपन होता है। अब मछली खाइएगा तो कांटा गड़ेगा कि नहीं, तो कांटा नहीं गड़े इनको, इसकी चिंता के लिए हम लोग उस समय चिंतित हुए कि एक नौजवान मछली खाएगा अगर कहीं कांटा गड़ गया तो पूरा चुनावी अभियान में ही परेशानी हो जाती। इसलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता के दृष्टिकोण से हम लोग राय दिया था कि माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के परिजन हैं। मैं नहीं समझ पाता कि विदेश में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारत के संविधान का ज्ञान उनको कितना है। और संविधान के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आप राजनीतिक टिप्पणी व्यंग्य के रूप में कर रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दल के साथ जोड़ करके, इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला करके देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस मामले का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राजनीतिक टिप्पणी करना कोई संस्था पर, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्त की जा रही राय है उससे इतर हट करके अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी, आपके भी विपक्ष के पिटिशनर वहाँ हैं, तो एफिडेविट कर दीजिए कि इलेक्शन कमीशन फला पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, ये उसका टूल्स है, और नहीं तो केवल बयान देने से आपकी जगहसाई होती है। पारस अस्पताल में पैरोल पर आए कैदी की गोली मारकर हत्या, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। स्पेन में बोले सीएम मोहन यादव, भारत और स्पेन है जुड़वा भाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस के विधायक निलंबित। दिल्ली के रिचमंड ग्लोबल स्कूल को धमकी भराई मेल, पुलिस को तत्काल सूचना। लालू के बाद सबसे ज्यादा जेल में रहे केजरीवाल, बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। बिहार में अपराध पर पीएम की चुप्पी, बेईमानी होगी, बोले मनोज झा। गुजरात कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला, अमित चावड़ा ने जताया शीर्ष नेतृत्व का आभार। मटन भोजन पर ललन सिंह ने उदित राज पर किया पलटवार। विधान भवन में 2 गुटों में झड़प, रोहित पवार ने दी सफाई। पटना में 110 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत, पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा। फडणवीस और अश्विन वैष्णव ने IICT NFDC परिसर का उद्घाटन किया। क्या कोरियन फिल्म की कॉपी है आहान पांडे की सैयारा? मोहित सूरी पर क्यों लगाए हैं आरोप?
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच